Okay, guys. So, firstly, I will talk about last class में हम लोग क्या पढ़े थे. Last class of BCR, we had finished off with chapter 1 of BCR, which is communication. Okay, so if you recall, this was our very first class of communication, BCR. BCR लेके मैं क्या बोला था, मैं और एक बार एकदम बहुत कंसाइसली बोलना चाहता हूँ. Very concisely, I said for CA Foundation, paper 2, which is known as Business Law and BCR. For CA Foundation, for paper 2, there are two portions. One is business law, the other one is BCR. Business law is what we commonly call law. Of course, I like to expertise in law, and I expertise in law. So alongside law के साथ साथ और एक 40 मार्क का पोर्शन यहाँ पे एडेड है इस पेपर में, जो इस पेपर को इजी भी कर देता है और कठिन भी कर देता है. इजी भी करता है, कठिन भी करता है. ओके, इट मेक्स दिस पेपर इजी एज वेल एज हार्ड. व्हाई इजी? आई टोल्ड यू a paper like BCR is a very big, scope. It makes your scoring chances higher, passing chances higher, because 40 मार्क का BCR जो है उसमें टफ कुछ नहीं आएगा, उसमें एवरेज मार्किंग सबको मिलने वाला है. 40 में 20 तो कोई भी उठा लेगा, बट देन अगेन इट्स टफ. व्हाई? बिकॉज वो 40 में 20 उठाने के लिए अगर एडिक्वेट प्रैक्टिस नहीं है तो आपको 1 से 1.5 घंटा लग सकता है. वो 1.5 घंटा लग जाने से लॉ के लिए आपका 60 मार्क्स का लॉ के लिए आपका सिर्फ 1.5 आवर्स रहेगा, एंड दैट विल बी टू शॉर्ट टू फिनिश द लॉ पेपर. डे 1 से मैं एग्जाम का चीज बोलते जाऊंगा, फिर भी नहीं सुनोगे, फिर भी नहीं करोगे तो फिर it will take a toll on exam. So my request, BCR must be paid attention. If we practice BCR regularly like we are doing, the problem will be solved. BCR का सिलेबस चुटकी में खत्म हो जाएगा और BCR में इतना स्ट्रांग बन जाएंगे आप कि वो 40 में 30 उठाना आपका कुछ बड़ा बात नहीं रहेगा. और 40 में अगर 30 आ जाता है तो लॉ का 60 में तो मेरा हर क्लास कोई करेगा तो 60 में 30 तो आएगा ही. तो 60 अबव स्कोरिंग इन लॉ इज अ बना बनाया हुआ खेल, और मैं स्ट्रेटेजाइज भी कर दिया पहला क्लास में. और मैं बोला कि व्हाई इज दिस सो इम्पोर्टेंट, आई रिवाइज दैट ओनली. एंड देन आई सेड व्हाट इज द सिलेबस ऑफ BCR. आई टोल्ड यू BCR का टफ चीज क्या है. मैं इजी चीज तो बोल दिया, BCR का टफ चीज है, उस इजी चीज में भी मैं टफ चीज बोल दिया था. BCR is hard because BCR में 1 घंटे में within time you have to finish a lengthy portion. That 40 marks is going to be lengthy because there are 13 chapters in the syllabus and लगभग approximately 3 marks करके हर एक chapter से आएगा. Approximately 3 marks will be coming from each chapter, making it 13 into 3, 39. Okay. So this was our discussion on BCR. Now, without any further ado, I am starting with BCR में जो टेक्निकली मैं स्टार्ट किया था नेक्स्ट क्लास में, वो था कम्युनिकेशन है क्या. Chapter 1 was dedicated to communication. Out of these 13 chapters, couple of chapters are theory chapters like communication and meetings. Couple of chapters are grammar chapters like vocabulary. And 4 chapters को leave out करो तो बाकी 9 chapters BCR में comprehension, reading comprehension, article writing, précis writing, summary writing, letter writing, mail writing, circular, all these are there. Okay, so I pretty much पहला 2-3 क्लास, today is the class number 3, पहला 2-3 क्लास में दिमाग में अगर किसी का घुस जाए क्या है क्या नहीं है, और आगे जाके अगर बाकी क्लासेस में ज्यादा क्लासेस नहीं लगता है BCR के लिए, पूरा खत्म हो जाए, घर में एक बार प्रैक्टिस कर ले
बस ये फाउंडेशन सॉर्टेड, पेपर 2 सॉर्टेड। पेपर 2 सॉर्टेड है तो बाकी 4 पेपर में टफेस्ट पेपर यही है, toughest paper is this. Okay, now sir, let us come back to the technical study of BCR. आप क्या पढ़ाए थे कम्युनिकेशन चैप्टर 1 में? मैं कम्युनिकेशन चैप्टर 1 खत्म कर दिया था और बोला था होमवर्क मैं हर रोज देखूंगा। होमवर्क कैसे देखूंगा? मैं बोला कॉपी दिखाना है, ठीक है? तो कॉपी सबको दिखाना है, मैं जिसको जिसको पूछूंगा वो दिखाएगा, ठीक है? कैसे करेंगे मैं मैनेज करूंगा वो, दैट इज अप टू मी, that is up to me to manage. But when I go to the questions, I will ask for the copy at random sampling basis. You have to show me what you have done in your copy. You cannot show, then you have to come with a better excuse. Okay, all right. So what is communication? Communication है क्या? Communicate करना मतलब शेयर करना। सर आप क्लास में अभी पढ़ा रहे हो, आर यू कम्युनिकेटिंग? यस, I am communicating. I'm sharing ideas with you. I'm sharing my ideas with you. I'm sharing my thoughts on a particular topic. I'm sharing my feelings, emotions, because my facial expressions are doing a lot of communication, not only my language. याद है? So communication means sharing of ideas, information, data, feelings, emotions, thoughts. And what is the process of communication? If you recall, I had shown with the help of a diagram, and that was starting from sender. सेंडर ने एनकोड किया मैसेज और भेज दिया कम्युनिकेशन चैनल से, और वो रिसीवर के पास पहुंच गया, और इसी को कहा जाता है कम्युनिकेशन। फिर मैं बोला था टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कितना तरह का कम्युनिकेशन हो सकता है। मैं बोला था बेस्ड ऑन चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल या विजुअल कम्युनिकेशन हो सकता है। सर वर्बल कम्युनिकेशन यानी विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स, वर्ब मींस वर्ड्स, तो मैं कुछ बोल रहा हूं, कुछ लिख रहा हूं, ये वर्बल कम्युनिकेशन है। मैं हंस रहा हूं, गुस्सा कर रहा हूं, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी, अच्छा सर वर्बल में फिर 2 है, रिटन एंड ओरल, हाँ, और नॉन वर्बल में बहुत सारा 5 चीज था। क्या क्या सर? ये बॉडी लैंग्वेज, मैं बोला 55% ऑफ द टोटल ह्यूमन कम्युनिकेशन वाज बॉडी लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज, एस्थेटिक, अपीयरेंस, सिंबल्स। ओके, एंड देन लास्टली विजुअल कम्युनिकेशन में एक प्रोवर्ब, चाइनीज प्रोवर्ब बोला था, ओल्ड वाला, ओल्ड सेइंग, a picture can say more than 1,000 words. That means visually कभी कभार देख के इतना कुछ समझ में आ जाता है, इतना कुछ फीलिंग्स इवोक होता है कि बोलने का जरूरत नहीं होता है। किसी का आंखों में आंसू देखे, आप समझ जाओगे वो क्या बोलना चाहता है, क्या चीज से गुजर रहा है, ठीक है? So all these things are basically what? Are basically part of communication. Now let us see the purpose of communication. Based on purpose of communication, मैं last class बहुत अच्छे से समझाया था। communication formal हो सकता है, informal हो सकता है। ऑफिस, क्लासरूम, ये सब में कम्युनिकेशन क्या है? फॉर्मल। बाकी जगह में कम्युनिकेशन, घर में दोस्तों के साथ क्या है? इनफॉर्मल, कैजुअल, लैंग्वेज भी वैसा यूज होता है। ओके, नाउ मैं कम्युनिकेशन का एग्जांपल दिया था फॉर्मल कम्युनिकेशन का, इफ यू रिकॉल, याद आ रहा है? मैं बोला था ये 3 हायरार्की है, दीज आर हायरार्कीज, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, नीचे ऊंचा ऊंचा, ठीक है? परचेज, एचआर, सेल्स, 3 अलग अलग डिवीजन, 3 अलग अलग फंक्शन है काम करने का, और तीनों में हर एक पोजीशन फिल्ड है। कौन कौन है मैं बोला था। फिर मैं बोला था अगर असिस्टेंट मैनेजर लोग का मीटिंग है तो इट्स अ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। व्हाई? बिकॉज सारा असिस्टेंट मैनेजर लोग अगर कम्युनिकेट किया तो इट विल बिकम अ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, बिकॉज हायरार्की तीनों का सेम है। और इंटर डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट का
परचेज डिपार्टमेंट का अगर 3 जन मीट किया तो दैट विल बी अ वर्टिकल। सर उल्टा लिखे थे, हाँ उल्टा लिख दिया था, उल्टा लिख दिया था। दिस विल बी वर्टिकल एंड दिस विल बी हॉरिजॉन्टल। व्हाई सर? डोंट गो बाय द डायरेक्शन, एक्चुअली थिंक, दिमाग में सोचो, क्वेरी करने से पहले सोच लो मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि मैनेजर, मैन 1 इज एन असिस्टेंट मैनेजर, उसके ऊपर कौन है? मैनेजर, उसके ऊपर कौन है? सीनियर मैनेजर। तो ऊपर नीचे वाला होगा ना परचेज डिपार्टमेंट का जो भी कम्युनिकेशन। सो ऊपर नीचे वाला कम्युनिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकल। और ऐसा कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं? हॉराइजॉन्टल। तो सोचो 3 असिस्टेंट मैनेजर एक लेवल में है तीनों डिपार्टमेंट में, तीनों का अगर असिस्टेंट मैनेजर लोग का मीट है तो इट्स अ हॉराइजॉन्टल कम्युनिकेशन, दैट्स व्हाई यू नो हॉराइजॉन्टल। एंड इंटर डिपार्टमेंट अगर कोई बातचीत हुआ, सीनियर मैनेजर ऑफ लेट्स से परचेज विद असिस्टेंट मैनेजर ऑफ सेल्स, तो फिर डायगोनल। ठीक है, ये समझाया था। फिर मैं बोला था ग्रेप वाइन, और उसका एक खतरनाक एग्जाम्पल दिया था, याद था? ठीक है, चर्चा, चाय पे चर्चा, ऑफिस वाले लोग गॉसिप करते हैं, तो ये ग्रेप वाइन है। और ग्रेप वाइन इज अ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ऑफिस में फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों होता है। फॉर्मली क्या मेल लिखते हैं, मैं उसको उसके साथ जाते हुए देखा नहीं, ये इनफॉर्मली होते हैं, चोरी चोरी चुपके चुपके। ग्रेप वाइन, जो चीज के बारे में बात हो रहा है वो भी चोरी चोरी चुपके हो रहे हैं, और जो लोग बात कर रहे हैं वो लोग भी चोरी चोरी कर रहे हैं। ठीक है। और नेटवर्क इन कम्युनिकेशन मैं बोला था 5 तरह का नेटवर्क होता है। देयर इज वर्टिकल नेटवर्क, देयर इज सर्किट। सर्किट नेटवर्क मतलब वही डायग्राम को इमेजिन कीजिए। और चेन ऑफ कमांड मैं बोला था हायरार्की, टॉप डाउन, टॉप से डाउन आएगा। अच्छा, वर्टिकल और चेन ऑफ कमांड में मैं डिफरेंस बोला था, एक जन पूछे थे। मैं बोला था वर्टिकल सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर के बीच 2 वे कम्युनिकेशन, टॉप डाउन एंड बॉटम अप, एंड 2 वे। एंड मैं व्हील एंड स्पोक बोला था, यूजुअली सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में द प्रोप्राइटर इज द सेंटर एंड स्पोक्स सारे जन हैं, एंड लास्टली स्टार नेटवर्क, सबके साथ सबका। ओके सर, एंड लास्ट टॉपिक व्हिच वी हैड डन was characteristics of effective communication. If you recall, जो लोग क्लास किए हैं सबको याद आ रहा होगा। क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए, कर्टियस होना चाहिए। सी सी 6 सीज। तो सी याद रखने से ही आ जाएगा। एंड मैं बोला था लिसन करना चाहिए। देयर वर barriers to communication. We will start now. Barriers to communication and chapter end करके अपने एक्सरसाइज होमवर्क में था। एक्सरसाइज के पहले एक केस स्टडी था। केस स्टडी को डिस्कस करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। Thank you. So we have successfully concluded the revision. Every class, it's a habit to revise everything done in the previous class or previous classes. It helps new students to understand. It helps someone who couldn't do the backup but attending today's class to relate. It helps students who have forgotten, बाप रे क्या हुआ था last Friday को, याद आ जाता है, refresh हो जाता है. Of course, revision is very important in life also. Okay, now all right guys, this was the chapter. This was the chapter, and here what did we do, sir? I have done the entire chapter with you in the first 2 classes. सब याद आ जाएगा, ये सब अभी दिखा रहा था व्हाइट बोर्ड यानी कि एक्सेल से. एंड नेटवर्क
नेटवर्क डायग्राम्स देखने से ही हो जाता है। सर इस चैप्टर से कितना मार्क्स आएगा? 3 मार्क्स। हर एक चैप्टर से 3 मार्क्स, अभी तो बोला रिलेट करो। 13 चैप्टर इंटू 3 40 मार्क्स। ओके सर। सर अभी आप क्या पढ़ाएंगे? अभी ये लास्ट टॉपिक जो बाकी था, लास्ट क्लास, ये देखो, फोकस एंड attention and emotional awareness and control was the last point in characteristics of good communication or communication, after which हम लोग का एक टॉपिक में छोड़ के बोला था खुद से पढ़ के आना, वो है barriers of communication। और barriers of communication is the आखिरी टॉपिक ऑफ चैप्टर 1 communication, and with उसके ठीक नीचे एक्सरसाइज चालू होगा जो आप लोग का होमवर्क में था। क्लियर है? तो मैं कुछ छोड़ता नहीं हूं, एक शब्द भी। तो बेरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन कर लेते हैं। बेरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, बेरियर्स का मतलब क्या है? इम्पेडिमेंट्स। बेरियर का और एक इंग्लिश होता है इम्पेडिमेंट। ठीक है, क्या बाधा? ओके सर। सर व्हाट इज द प्रॉब्लम? बेरियर, बेरियर मींस जो गार्ड कर रहे, जो प्रॉब्लम आ रहा है बीच में। ओके सर। सर अब बताइए कम्युनिकेशन का प्रोसेस में क्या क्या बेरियर है? अच्छा बोलो, मैं आके ही आज क्या बोला? मेरा आवाज सुनाई दे रहा है, साउंड, नॉइज। थिंक ऑफ द थिंग, टेक्निकल डिस्टर्बेंसेस। मैं बोला क्या आवाज ठीक से सुनाई दे रहा है? क्या लैग हो रहा है? वीडियो क्या दिखाई दे रहा है मैं क्या क्या कर रहा हूं? तो द आइडिया इज फिजिकल बेरियर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है सराउंडिंग्स से जो बेरियर्स आता है, रिजल्ट ऑफ सराउंडिंग्स से, जैसे कि नॉइज, टेक्निकल डिस्टर्बेंस, डिस्टेंट लोकेशन। ऑफ कोर्स हम लोग का कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा हम लोग डिस्टेंट अगर है तो, बट ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी के जरिए वो सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है। ऑफिस डोर्स, सेपरेट एरियाज फॉर पीपल इन डिफरेंट एरियाज। ठीक है। ओल्ड टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सबसे फिजिकल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन होता है। सपोज कीजिए आज कोई गांव में कोई ऑफिस है, वो ब्रांच है एक बड़ा कंपनी का, बड़ा कंपनी का हेड ऑफिस है कोई बड़ा शहर में, मुंबई में। वो गांव से मुंबई में संपर्क करने के लिए या तो चाहिए इंटरनेट या तो चाहिए फोन। गांव में दोनों नहीं है, गांव में दोनों नहीं है। आज का जमाने में संभव नहीं है। आज का जमाने में चांद में भी आपको मतलब जाके मून में भी मिलेगा इंटरनेट शायद। ठीक है, बट मैं बोल रहा हूँ लेट्स से गांव में खाना नहीं मिलेगा, इंटरनेट मिलेगा, यही हकीकत है। सो द आइडिया इज लेट्स से गांव में इंटरनेट है नहीं, इंटरनेट है नहीं कोई कारण से, और गांव का ब्रांच क्या एचओ से संपर्क कर पाएगा विदाउट इंटरनेट एंड विदाउट टेलीफोन इजीली? नो, इट विल हैव टू डिपेंड ऑन पोस्टल कम्युनिकेशन। चिट्ठी पोस्ट करेगा, चिट्ठी, पोस्ट ऑफिस है हर जगह, तो पोस्ट करेगा चिट्ठी, चिट्ठी पहुंचेगा एचओ को, 3-4 दिन लग जाएगा ना। अगर अर्जेंट कम्युनिकेशन हो तो बस पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन विल बी फेलिंग। आर यू गेटिंग मी? सो दिस इज अ फिजिकल बैरियर। इसीलिए इतना कुछ बोला फिजिकल बैरियर में। सिर्फ वो नहीं बोला कि सिर्फ वो नहीं बोला कि it's not only surrounding, it is also what? It is also the आपका physical distance, technical disturbance, distant location, office doors, separate areas for all these things. Okay sir. Sir उसके बाद कौन सा बैरियर है? Organizational structure barrier. Sir what do we mean by organizational structure? आप बताओ मेरे को। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मतलब हायरार्की ड्रिवन। कभी कभार होता है कि मैं अभी मैं नौकरी नहीं करता हूँ, बहुत साल पहले जब करता था मैं, मेरा हर मैनेजर का भी मैनेजर रहता है। आई वाज अ मैनेजर इन अ बिग कंपनी। सो मैं मेरा मैनेजर के पास गया, आई वेंट टू माय मैनेजर सीकिंग अप्रूवल फॉर लीव, क्योंकि हर एक जन को लीव लेने के लिए अपना हायरार्की में जो ऊपर में है, जो मेरा जिसको मैं रिपोर्ट करता हूँ, उनसे मेरे को बोलना पड़ेगा कि कल मैं नहीं आऊंगा, नहीं तो उनको समझ में कैसे आएगा। ठीक है, तो मैं लीव अप्रूवल बोला जाता है इसको। मैं जितना जन मेरे नीचे था मैं लीव अप्रूव करता था उनका। मेरा लीव क्या खुद को कैसे अप्रूव करूंगा?
तो मेरा लीव के लिए मैं जाना पड़ता था, मेरा ऊपर में जो था सीनियर मैनेजर थे वो, एंड मैं उनके पास जाके मैं बोलता था कि मेरा लीव अप्रूव कर दीजिए, मतलब वर्बली नहीं, ये प्रोसेस है मेल में. सो ही यूज्ड टू sometimes be absent himself. मेरे को नेक्स्ट दिन लीव चाहिए, वो खुद एब्सेंट है, संपर्क नहीं किया जा रहा है, बोलो मैं लीव कैसे ले पाऊंगा? आसान नहीं है. अगर अर्जेंट है मैं ले लूंगा, बट मैं बोल रहा हूँ आसान नहीं है. प्रोसेस को फॉलो करना आसान नहीं है फिर. हाँ, और ये क्यों ऐसा बैरियर आ रहा है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की वजह से. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हर एक जन को अपना बॉस से लेना है, तो उसका बॉस ही अगर नहीं है तो अप्रूव कौन करेगा? बात समझे? सो इट्स अ बैरियर क्रिएटेड बाय व्हाट? द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. सर लैंग्वेज बैरियर होता है कम्युनिकेशन में? हाँ बिल्कुल. आज का क्लास में जिन लोग को हिंदी नहीं आएगा या अंग्रेजी नहीं आएगा, मेरा क्लासेस में मैं हिंदी एंड इंग्लिश, आई यूज दीज टू लैंग्वेजेस बिकॉज ये सबको समझ में आता है. बंगाली सबको समझ में नहीं आएगा, उड़िया सबको समझ में नहीं आएगा, भोजपुरी सबको समझ में नहीं आएगा, आया ना सर? और गुजराती सबको समझ में नहीं आएगा, मराठी सबको समझ में नहीं आएगा, कोई भी भाषा हो, मरवाड़ी, ऑफ कोर्स नो वन विल, नॉट एवरीवन विल अंडरस्टैंड, फ्यू वर्ड्स यहाँ वहां सबको समझ में आ जाएगा, बट पूरा भाषा क्या बोल पाएंगे सब लोग? नहीं नहीं. तो मोस्ट कॉमन लैंग्वेज जो है हिंदी, इंग्लिश, ये सब में अगर कम्युनिकेट हो तो सबको समझ में आएगा. लैंग्वेज बैरियर विल बी गॉन. लैंग्वेज बैरियर विल बी गॉन. सर तो बताइए, लैंग्वेज बैरियर क्या बहुत बड़ा बैरियर है? साउथ इंडिया में जाके रहिए, साउथ इंडिया में जाके रहिए, अपना ही पार्ट है. वर्ल्ड का कहीं भी जाके रहिए, पूरा दुनिया ही आपका है. मैं भेदभाव का बात नहीं बोल रहा हूं, बट एक जगह में जाके रहेंगे तब पता चलेगा लैंग्वेज बैरियर कितना इंपॉर्टेंट है, कितना बड़ा बैरियर है. कोई आपको समझ नहीं पाएगा. आपको अगर अंग्रेजी नहीं आता है तो कोई आपको समझ नहीं पाएगा. आपका लोकल लैंग्वेज उनको आता नहीं है और हिंदी भी उनको आता नहीं, तो एक बैरियर हो जाता है. कौन सा भाषा में आप समझाएंगे और कौन सा भाषा में समझेंगे? यूरोप, यूरोप का बात अगर करूं तो यूरोप में जाएंगे तो पता चलेगा कोई भी मेनलैंड यूरोप, यूके नहीं, मेनलैंड यूरोप में कोई भी कंट्री ले लो, फ्रांस ले लो, बेल्जियम ले लो, जर्मनी ले लो, आप जाके उन लोग से बातचीत करोगे अंग्रेजी में, वो लोग जवाब अंग्रेजी में नहीं देगा. भले ही उन लोग को अंग्रेजी आता है, ऐसा नहीं है नहीं आता है, वो गलत है जो लोग बोलता है. मोस्ट ऑफ देम नो वेरी गुड इंग्लिश ऑल्सो, स्पेशली द जर्मन्स एंड स्पेनिश एंड फ्रेंच, एवरीवन, ठीक है ना? दे नो वेरी गुड इंग्लिश, बट they don't like to reciprocate or use such language. They will comprehend you, maybe they will reply to you, but they will reply to you most of the times in their mother tongue or in their language. So if you don't know German, if you don't know Spanish, if you don't know French, you'll be in a great problem. तो ये है लैंग्वेज बैरियर, और ऐसा ही लैंग्वेज भी तो एक पार्ट ऑफ कल्चर ही है. तो इन अ वे कल्चरल बैरियर भी यही है. कल्चरल बैरियर टू कम्युनिकेशन भी यही है. डिफरेंट कल्चर में कम्युनिकेशन डिफरेंट तरीके से होता है. पीके बोल के एक मूवी आया था आमिर खान का, पीके, सुने थे या देखे थे? कुछ लोग देखे भी होंगे. पीके जो मूवी था उसमें दिखाया गया डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट डिफरेंट कलर का डिफरेंट डिफरेंट सिग्निफिकेंस है. याद करो, बोला गया था ना सर, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट डिफरेंट कलर का डिफरेंट डिफरेंट सिग्निफिकेंस का मतलब बहुत आसान है. आज अगर आप बात करो व्हाइट कलर का, द कलर व्हाइट is used at the time of marriage in Christian marriages. You've seen na, the bride wears white, a white gown. And if you talk about India में rather Hindus, if you talk about the Hindu religion में usually widows
used to wear, why shall, so used to wear white. तो ये जो कलर का कोडिंग है, ये कलर कोडिंग क्या है, पार्ट ऑफ रिलीजियस सेंटिमेंट एंड रिलीजियस रूल्स एंड कल्चर, और ये अलग अलग चीज कम्युनिकेट करता है, तो ये एक बैरियर हो जाएगा। किसी के लिए काला शुभ है, डार्क ब्लैक, किसी के लिए काला अशुभ है, किसी के लिए सफेद शुभ है, तो सफेद, सोचो बहुत बड़ा बैरियर हो जाता है, हटा दो ये सब बैरियर्स। ओके, नाउ कल्चरल बैरियर्स। अब इमोशनल बैरियर, सर इमोशनल बैरियर क्या हो गया, जेलसी, जलन, जेलसी यानी कि जलन। कुछ लोग इतना इनसिक्योर और जेलस होते हैं, कुछ लोग इतना इनसिक्योर और जेलस होते हैं कि पूछो ही मत, पूछो ही मत। आप लोग देखोगे, अभी तो देखे ही कहा उस दुनिया, 18 तक माइनर हो बहुत सारे, और जितना जन मेजर भी हो, द आइडिया इज within 18 you have seen, not even seen 1/4 of the entire life. So the idea is when you cross at least half of your milestone, when you have lived half of your life, you'll be full of surprises. Wow, this is life, you'll be full of surprises. So that jealousy, like I was saying, jealousy is a very big emotional barrier. When someone is jealous, he will guard you from communicating, he will create nonsense problems and everything. Suspicion of intention, mistrust of person, criticism, fear of criticism, ये सबसे इमोशनल बैरियर होता है। डर, आज आप, मैं एक इजी एग्जांपल लूंगा इमोशनल बैरियर का। आज आप स्कूल में, आपको टीचर रिजल्ट्स या मार्क्स बोला, आपका फेल करा दिया आपको, और आप डर गए, फियर इमोशन, आप डर गए। क्या चीज का डर है, मम्मी पापा का इमोशन का डर। their emotion will not be fear, their emotion will be anger, and you have suppressed the marks from them. आप सोच लिए कि अभी तो मम्मी पापा को बताने के लिए कोई नहीं है, मैं ही हूं, मैं अगर ना बताऊं तो उन लोग को पता नहीं चलेगा, उन लोग को दुख नहीं होगा, उन लोग को गुस्सा नहीं होगा। कम्युनिकेशन हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ। so emotion acted as a barrier. क्लियर है? एटीट्यूड बैरियर, सर व्हाट इज एटीट्यूड बैरियर? बोलो, कभी कभार कुछ एम्प्लॉइज होते हैं, कुछ एम्प्लॉइज होते हैं एकदम निकम्मे कामचोर, और कुछ एम्प्लॉइज या कुछ पर्सन्स, पर्सनालिटी एक्चुअली, कुछ पर्सनालिटीज होते हैं बहुत एक्टिव, सुपर एक्टिव, हमेशा काम कर रहे हैं, हमेशा बात कर रहे हैं, हमेशा सोच रहे। एक्टिव एंड लेजी, टू डिफरेंट एटीट्यूड्स। बोलो, कम्युनिकेशन ठीक से नहीं होगा अगर लेजी है, तो फिर it will act as the personality, or the attitude will act as a barrier. perception barrier, perception मतलब सोच, हिंदी में लिख के रखिए जिन लोग को पता नहीं था। perception का मतलब होता है सोच। perception barrier क्या है सर? perception barrier का मतलब है, आज अगर आपका सोच एक है, मेंटल वेवलेंथ, और दूसरा जन का सोच वैसा नहीं है, तो क्या कम्युनिकेशन हो पाएगा ठीक से? आप एक नजरिया से बोल रहे हो और दूसरा नजरिया से कोई और समझ रहा है, तो परसेप्शन बैरियर हो गया ना। फिजियोलॉजिकल बैरियर, कोई क्लास में होगा, बहुत जन होगा जिनका चश्मा है, मेरा नहीं है, थैंक गॉड, ठीक है, ओके। तो चश्मा है मतलब पुअर आईसाइट है, चश्मा खोल दो तो, ओके सर। तो सर ये जो चश्मा वाले भैया है और ये जो चश्मा वाले लोग हैं, इनका चश्मा ना लेके अगर ये लोग क्लास करने आए और मैं कुछ दिखाया
उनको ठीक से दिखाई ना दे, ये भी बैरियर टू कम्युनिकेशन होगा ना। क्यों? क्योंकि चश्मा नहीं था। तो ऐसा बैरियर को क्या बोलोगे? फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, पुअर आईसाइट, हियरिंग डिफिकल्टीज एक्सेट्रा। सर अगर यही हियरिंग डिफिकल्टी होता, अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन से गड़बड़ी होता, तो फिजिकल बैरियर में आता, और अगर कान ही खराब है तो वो फिजियोलॉजिकल बैरियर में आ जाए। क्लियर है? टेक्नोलॉजी बैरियर भी वही बोला अभी, अगर कम्युनिकेशन का टेक्नोलॉजी का टूल्स या इक्विपमेंट ही खराब हो तो दैट्स अ टेक्नोलॉजी बैरियर। अगर बफर करने लगे अभी इंटरनेट, टेक्नोलॉजी बैरियर। लास्टली जो पॉइंट नंबर 10 है, जो पॉइंट नंबर 10 है उसको एनोटेट करने का ऑप्शन जूम में नहीं दिख रहा है, इसीलिए मैं काट नहीं पा रहा हूं। इसको ऐसे करके काट दो। पॉइंट नंबर 10 को हर एक जन ऐसे करके काटो। प्लीज कट इट। सर वाई विल आई कट इट? पढ़ के देखो कितना गंदा चीज लिखा हुआ है, पढ़ के देखो कितना गंदा चीज लिखा हुआ है। They are talking about in a book, they are openly talking about, backward things. They are talking about backward things, and they haven't corrected it. They have dared not to correct it. It's a backward thinking, and it's a very poor thinking. They have spoken about gender barriers, but not from the real perspective. They have given a very stupid example. If you read, they have said openly, men talk in linear, logical, compartmentalized manner, whereas women use both logic and emotion and are more verbose. They have spoken about illogically without any scientific explanation. The reason for this lies in varying of men's and so they have done this. This point is not a gender barrier. This is a perception barrier. This is an example of सोच का difference. जो लिखा और जो पढ़ रहे. In my book, I never use this. Since we are using this book, we have to see this because I couldn't delete it. So you delete it, you cut it when you have a hard copy. Okay. Never discriminate between genders. Okay. Now I will come to one by one. Sir, does ego come under attitude barriers? Absolutely. Absolutely, Adish. Sir, verbose means, Shivam, verbose means talkative. अब तुमको जोक लगेगा, हाँ सर वर्बोस तो है, ठीक है सर. इन टोटल 9 barriers are there. Yes, Shayan. And sir, when I read this yesterday, I didn't want to study VCR anymore. Yes, Shruti, I didn't want to teach VCR anymore after reading this, but I cut this point every batch because we have to. So sir, suspicion of intention meaning निशान, सस्पिशन का मतलब क्या है? शक. तुम्हारा घर में अगर तुमको हर कोई शक करेगा, क्या कर रहा है, क्लास कर रहा है या इंटरनेट में क्या देख रहा है, ऐसा करके तुम्हारा पीछे आके शोल्डर के ऊपर अगर कोई करता है, तुम्हारा इंटेंशन या इरादा को हमेशा शक करता है, शक के नजरिया से अगर कोई देखता है तो तुमको खराब लगेगा ना, कम्युनिकेशन खराब हो जाएगा ना. वही बोला. समझ में आ रहा है सबको? तो सर ऑफिस डोर मीन्स, अरे ऑफिस डोर का मीनिंग क्या है? ऑफिस डोर, ऑफिस का दरवाजा. ये कैसा सवाल हो गया? ठीक है, ऑफिस का दरवाजा रहने की वजह से कभी कभार कम्युनिकेशन रुक जाएगा ना. ठीक है, ओके. जतिन पोद्दार क्या हाथ उठा दिया, तो बोल क्या बोलना है. ठीक है, एनी क्वेश्चन जतिन? नो. ठीक है, सबको सब कुछ समझ में आया? शिवम, निशांत क्लियर? शायन, अधिश्री, एवरीवन क्लियर? ओके. How does anxiety act as a barrier? Anxiety acts as an emotional barrier. This is not a psychology class, but I will help you. Anxiety is a very bad thing. Anxiety is a very bad thing. Sir, are you anxious at times? Yes, we all have the same feelings, emotions, you know, we all have the same psychological workings of the brain. Psychological workings of the brain same है.
ठीक है. So the idea is to live freely without any fear. Anxiety is not uncommon. बहुत वीडियोस आजकल वायरल हो रहे हैं उल्टा सीधा, कोई बहुत एग्रेसिवली शॉविनिस्ट टाइप ऑफ पर्सन आके बोल देता है कि डिप्रेशन कुछ नहीं, दुख मत करो, कम मत करो. आज ही मैं सुबह देख रहा था एक वीडियो, बॉलीवुड एक्टर का नाम नहीं बता रहा हूँ. सो द आइडिया इज very stupid video. Depression is a medical condition. You have to treat it. You have to understand. Then only you will be able to cure it. और आजकल हम लोग का जनरेशन जितना आएगा, yes, निशांत is correct. So आजकल जितना अपना जनरेशन हम लोग आगे बढ़ेंगे, जितना एजुकेशन हम लोग लेंगे, हम लोग को और समझ में आएगा, और ये सब का शिकार हम लोग और होते हैं, because we are all isolated. Technology is bringing us together. But also physical distance and distance, social distancing, everything is going up. So please talk. Please don't hesitate to share your feelings and emotions with the persons you seem right, you think who can help you. Always ask for help. Always seek for help. Always talk. Always deal with problems. Never shy away. Never think that like no one will understand your problem. Try. Okay, so there's a question. अभी सब लोग अपना अपना पर्सनल प्रॉब्लम्स मेरे को वो मतलब प्राइवेट चैट में मत बोलना, हाथ माफ कर रहा हूँ, मतलब बट माफी मांग रहा हूँ. मतलब आप लोग मेरे से बात कर सकते हो, ऑफ कोर्स यू हैव माय नंबर. आई एम वेरी लीनियंट एंड ओपन माइंडेड, बट नॉट इन क्लास. ओके, नाउ द आइडिया इज, सर कुछ बोले थे सर, वी विल नॉट बी क्वेश्चन फ्रॉम पॉइंट 10 बेरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. जतिन का सवाल है. जतिन नहीं, और अगर पूछे भी तो ये वाहियात आंसर मत लिखना, लिख देना जेंडर बैरियर है. और खास करके रहेगा जब तक आपका इंस्टीट्यूट का सोच ऐसा मैट में ऐसा रहेगा, तब तक रहना चाहिए जेंडर बैरियर. ऐसे बोल देना, बोल नहीं पाओगे, लिखना पड़ेगा. सो द आइडिया इज नहीं आएगा, 3 मार्क्स का सवाल आएगा पूरा चैप्टर से, उसमें जेंडर बैरियर का वही पॉइंट थोड़ी ना देगा. ऐसा सोच, ब्रॉड माइंडेड बन तू भी, ठीक है. और अब पूछेगा तू अगर आ गया तो अपना बुद्धि लगा के आंसर तो कर देना. मार्क्स मिलने के लिए जो करना है करना. बी स्मार्ट, प्रैग्मेटिक, ठीक है. आई एम नॉट सेइंग बी एन इमोशनल फूल, बट बी प्रैग्मेटिक, बट एट द सेम टाइम बी नॉलेजेबल एंड स्मार्ट. ओके, ऑलराइट, गॉट इट जतिन? ओके, नाउ हिमांशु पूछ रहा है सर गिव मी नंबर. अरे पहला क्लास से नंबर दे दिया हिमांशु, अभी मांग रहा है, ठीक है. ओके, और कौन क्या बोल रहे हैं? ऑफिस डोर, जस्ट एज यू गिव एन एग्जांपल ऑफ इंडिगो. यस, शायन इज वेरी करेक्ट. मैं एक क्लास में इंडिगो का ऑफिस का फ्लोर का डिजाइन के बारे में बोला था. फ्लोर में कोई दरवाजा नहीं है, कोई क्यूबिकल नहीं, कोई बैरियर नहीं है, स्टार कम्युनिकेशन जैसा. ओके, ओके, all of you got it. I'm moving ahead. All right, now comes the best part of the class, homework checking. Okay, homework checking. अभी बहुत सारा इमोशनल बैरियर आएगा, ठीक है. ओके, मेरा नंबर बहुत जन के पास नहीं है. बहुत जन पिंग कर रहे हैं, पिंग. हाउ डू आई गिव इट? हियर. ओ, यहाँ पे तो नंबर है ही नहीं सर. डोंट स्पैम दिस नंबर रिक्वेस्ट, ठीक है. एक ही नंबर बचपन से है मेरा. आप लोग का उम्र से जो नंबर है वही नंबर अभी तक है. थैंकफुली आई नीड नॉट चेंज एनीथिंग. सो दिस इज द नंबर, one stop number for calling, WhatsApping, query, everything, ठीक है. Okay, all right, thank you guys. Himanshu, Aditi, you guys have it. Okay, now sir, let's go ahead, let's do our other portions of the class, ठीक है. रख दो भाई, ठीक है. ओके, नाउ अदर पोर्शन ऑफ द क्लास में अपने केस स्टडी दिए थे होमवर्क में. मेरे को पता है केस स्टडी बहुत लोग, मेनी ऑफ यू कुड नॉट डू. लिखना नहीं पड़ेगा,
हैंड्स खाली रेस कर दो, मेरे को दिखाई दे देगा कौन कौन केस स्टडी नहीं पढ़ पाए। ऑनेस्टली हाथ उठा दो, मतलब कोई वेव योर हैंड होता है, अधिश्री पढ़ ले अभी। 3 पार्टिसिपेंट, 4 पार्टिसिपेंट्स, माय गॉड इंक्रीजिंग। 5 6 7 सब हाथ उठा रहे हैं। 8 10, बस समझ गया समझ गया। ठीक है, अभी एक काम करो, और हाथ उठाने का दरकार नहीं है, मैं समझ गया। 10 के ऊपर चला गया, ठीक है, ओके, ऑल राइट, आई गॉट इट, थैंक यू गाइस। सो व्हाट यू गाइस डू इज, सिंस ये सब लोग नहीं पढ़े, बहुत लोग पढ़े भी, आई नो, सो आप लोग को एक ही विनती है, आप लोग अभी 5 मिनट्स, जस्ट 5 मिनट्स इन्वेस्ट करके ये पढ़ लो। इन 5 minutes time I will start with the entire narrative on this case study. This is a very important case study for learning communication. In 5 minutes time I will start this entire narrative on this, case study, and deal with it in class with all of you. मैं खुद पढ़ाऊंगा, खुद समझाऊंगा। ये केस स्टडी एक बार 5 मिनट में पढ़ लो। अब केस स्टडी पढ़ने के लिए एक तो है मेरा स्क्रीन देख के पढ़ सकते हो ऐसे, बट स्क्रीन के साथ साथ मैं बोलूंगा अपना फोन, अपना इंटरनेट में जो अपना, जैसे मैं ये निकाला मटेरियल को खोल के पढ़ो तो खुद स्क्रॉल अप डाउन कर पाओगे, क्योंकि सबका रीडिंग स्पीड एक नहीं है। तो इंडिविजुअली अपना आईसीआई का मटेरियल खोल के पढ़ो case study, and in 5 minutes I will start. Within 5 minutes read it twice if possible. Okay guys, I hope you guys could read it. Reasonable time मिल गया रीड करने का। कुछ चैट्स मैं देख रहा था, मैं रिस्पॉन्ड नहीं किया क्योंकि मैं पढ़ने का टाइम दे रहा था।
तो पढ़ने का टाइम इज रीडिंग टाइम. देयर वाज अ गुड सजेशन सर, मीनवाइल होमवर्क चेक कीजिए. सजेशन तो कर लिए, बट कैसे चेक करूं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो बोला प्राइवेटली. तो सजेशन तो चेक कर लिए भाई, मतलब सजेशन तो देख लिए, बट सजेशन तो आप कर दिए, बट कैसे चेक करूं, मेरे पास कॉपी थोड़ी ना है. आप लोग पढ़ोगे तो कॉपी कैसे देखूंगा, होमवर्क चेक होगा कैसे, बोलो. ठीक है, तो दैट्स अ प्रॉब्लम. एंड होमवर्क चेक रियल क्लास में अलग से हो सकता है, वर्चुअल क्लास में अलग से होमवर्क चेक करना इज ऑलमोस्ट नामुमकिन. बट मैं एक प्रोसेस बना रहा हूँ, वो प्रोसेस मैं सोच रहा हूँ बना के शेयर करूंगा, मतलब बोलूंगा. ठीक है, वो प्रोसेस कुछ ऐसा है कि प्रोसेस है होमवर्क के लिए. मैं बोलूंगा मेरे को व्हाट्सएप कर देना अपना जो लोग होमवर्क बनाया और इवैल्यूएशन दरकार है, बीसीआर का खास करके. लॉ का बीसीआर हो, लॉ हो, मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए आपका कॉपी का इमेजेस क्लास के पहले वाला दिन, या क्लास के शुरू होने से 1 घंटा पहले. तो इससे क्या पता चलेगा, मैं जिसको पूछूंगा वो बोलेगा हाँ सर आपको व्हाट्सएप कर दिए. अभी भी वही करेंगे, अभी बोलूंगा कि होमवर्क जो लोग किए मेरे को व्हाट्सएप कर दो. ठीक है, तो इससे क्या होगा, होमवर्क मेरे को दिखाई देगा, और होमवर्क क्लास में रुक के क्लास टाइम को पॉज करके वो नहीं करना पड़ेगा. आई गेस दिस इज अ गुड वे. इफ यू वांट टू सजेस्ट समथिंग बेटर then you can suggest. I am open to suggestion, I am not a closed person. Okay, so you can suggest me, don't worry. It was a good suggestion to utilize time, but कैसे utilize करें, मतलब ठीक है. Okay, और एक query है नंदिनी का. she is asking that sir, being late for the interview will be the reason of not getting selected. One of the reasons, because punctuality is a very important thing. आज ही मैं बोला, सब लोग, बहुत लोग आ रहे थे मेरे आने के बाद भी. आई वॉज देयर फ्रॉम ऑलमोस्ट 11:15. हम लोग का टीम के साथ कोऑर्डिनेट होता है, तो मैं 11:15 से रेडी रहता हूँ. मैं बोलता हूँ टीम को जो क्लास फिक्स करते हैं, अरेंज करते हैं, एक जन है, तो बोलता हूँ कि 11:15 से 10:30 से या 10 से वो लोग शेयर कर दे, आप लोग को शायद कर भी देते हैं, और आप लोग आना शुरू कर दो जब चाहो, मतलब ऑनलाइन सब सेट रखो. ठीक है, 11 का 11:10 हो सकता है, ठीक है, मैं फिर भी बोलूंगा 10 के अंदर ही आओ, 11 के अंदर ही आओ. 11 का 11:10 हो सकता है, बट अगर 11:15 11:20 में कोई आता है तो दैट बिकम्स वेरी, मतलब उसका डिले की वजह से क्या होता है, उसको मिस भी होता है, उसको समझ में भी नहीं आता है. इसीलिए ऑन टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. वन मोर चीज जो इंपॉर्टेंट है पंक्चुअलिटी के बारे में बता दे रहा हूं. why we shall be punctual? It's about not only showing that you're on time, it's about respecting others' time. It's always about respecting the other person's time. अगर आज आप अपना कीमती समय किसी को दे रहे हो, कोई भी वजह से, वो समय कीमती है, आपका है, आपका जीवन का एक पोर्शन है. जीवन में हम लोग को क्या मिल रहा है, समय मिल रहा है. मेरा जीवन का कुछ समय अगर मैं आपको दे रहा हूं, तो वो समय का रिस्पेक्ट आपको करना चाहिए, और मेरे को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए आपका समय का. इसीलिए वी शैल बी ऑन टाइम. दैट इज इट. एंड पीपल हु आर मतलब वेरी वेरी impunctual or very like way off the mark and always doing that, others cannot trust them, and that is why job selection mein it's a criterion. Yes sir, you are told you will random tell to switch on video and show the homework, so I was talking about that. At the same time, the WhatsApp option is also very thoughtful and good, sir. Thank you, Jatin. Arpit, it shows you're dedicated towards job. Yeah, Arpit says that if you're on time, it shows that your dedication and interest towards the job. Absolutely, interest more than dedication, because it's a job interview. Okay, great guys. अच्छा, और एक फीडबैक आया शायन का, सर 11-12 तक तो हम लोग राइटिंग स्किल्स में नॉर्मल वर्ड्स यूज करते थे, सो अब प्रोफेशनल वर्ड्स बोल के कुछ नहीं होता है, टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, फॉर्मल वर्ड्स होते हैं. सो या, यू विल यूज टेक्निकल वर्ड्स एज मच एज पॉसिबल.
लॉ इज अ टेक्निकल सब्जेक्ट, तो लॉ में हर लैंग्वेज ही टेक्निकल बन जाएगा लॉ पढ़ते पढ़ते, और बीसीआर में जो है वो तो है, ठीक है। कैन वी यूज ऑर्नामेंटल वर्ड्स? नहीं, दरकारी क्या है, तुमको तो नॉर्मल एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन ही आएगा बीसीआर में। बीसीआर पोर्शन में ज्यादा लिखने का नहीं सोचना है, लॉ पोर्शन में ज्यादा लैंग्वेज का सोचना है, ठीक है। ओके, all right, yeah, how this thing will be, homework will be done, I will give you more suggestion one on one later on, अभी क्लास में कंटिन्यू कर रहे, ठीक है। अभी I am continue with the case study, let's come back to the case study all of you, okay now, all right, so रोहित मल्होत्रा अब मेरे साथ, एक फ्रेश एमबीए है। सर फ्रेश एमबीए, एमबीए क्या खाने का चीज है? नहीं, ऐसे ही लिखा, फ्रेश एमबीए मतलब फ्रेश ग्रेजुएट, ओके, फ्रॉम ABS, ABS is Amity Business School, received an interview call from Ernst and Young for the position of an intern. Ernst and Young क्या है सर? बहुत लोग को मालूम है, बहुत लोग को मालूम नहीं है। सीए फ्रेटर्निटी में, हम लोग का फ्रेटर्निटी में सीए लोग का, देयर आर 4 बिग ग्लोबल फर्म्स, जिन लोग को हम लोग बोलते हैं बिग फोर्स, बिग 4 फर्म्स या बिग 4 बोलते हैं। बिग 4 फर्म्स ग्लोबली 4 फर्म है, एक है PwC, एक है डेलॉयट, एक है KPMG एंड एक है EY। EY का फुल फॉर्म है अर्नस्ट एंड यंग। सर इतना जानकारी? हाँ, सब जानकारी लेते लेते तो तुम लोग प्रोफेशनल बनोगे, और इस लेवल का बनोगे कि कोई आइडिया नहीं है, और ऐसे ही जानकारी लेते रहो, ठीक है। ओके, नाउ सर ये बिग 4 फर्म्स क्या करते हैं? सीए फर्म्स है और अदर सर्विसेज भी देते हैं, यानी कि ऑडिटिंग, एश्योरेंस, मैं जो पहला दिन में बोल रहा था, सीए लोग जो जो करता है वो सारा चीज करता है, उसके अलावा भी बहुत कुछ कंसल्टिंग करते हैं। ये लोग बिग कंसल्टिंग फर्म्स है ग्लोबली। तो सीए बनने के बाद सर यहाँ पे नौकरी मिल सकता है? हाँ बिल्कुल, 90-80% ऑफ देयर वर्क फोर्सेस आर सीएस। ऑडिटिंग फर्म्स मतलब ऑडिटिंग सर्विसेज ज्यादा है इन लोग का मेजर सर्विस है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। और ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस के लिए कौन? सीए। सर आप इंटर में क्या पढ़ते हो? लॉ एंड ऑडिट, फाइनल में भी। सो द आइडिया इज ऑडिट इज वन ऑफ द मेन थिंग्स व्हाट अ सीए डज। एंड ऑडिट फर्म में मतलब सबसे मशहूर ऑडिट फर्म का 4 मोस्ट मशहूर ऑडिट फर्म्स ग्लोबली इज दीज 4 फर्म्स, इसलिए इन लोग का नाम है बिग 4। EY जो है वही है अर्नस्ट एंड यंग, अर्नस्ट एंड यंग, एंड वही फर्म में रोहित मल्होत्रा जो एमबीए किया उसका इंटरव्यू हो रहा था। समझ में आ रहा है? ओके सर। सर अर्नस्ट एंड यंग में आपका कोई रिश्ता है? मेरा हर बिग 4 में ही है सर। काम किया बिग 4 में? नहीं, अर्नस्ट एंड यंग में मेरा जॉब ऑफर था 2011 में, गुड़गांव में ही। सर क्यों नहीं गए? गुड़गांव था इसलिए, ठीक है। नाउ अर्नस्ट एंड यंग फॉर द पोजीशन ऑफ एन इंटर्न, इंटर्नशिप करेगा। he has to appear for the interview on the 5th of June at 10 a.m. at the company's Gurgaon office. बहुत बड़ा ऑफिस है गुड़गांव में। रोहित is excited about the opportunity and begins preparing for the interview. Excited है, thrilled है, preparing for the interview. The day of the interview arrives. Rohit, who resides in Noida. Now दिल्ली के बारे में जिन लोग को पता है, people among all of us, people who know about Delhi, they know दिल्ली में ट्रैफिक बहुत होता है, और नोएडा एंड गुड़गांव आर लाइक नॉर्थ एंड साउथ वैसा, और बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए वो नोएडा से गुड़गांव के लिए तैयार होकर निकला। 8:30 बजे उसका इंटरव्यू है, 10 बजे। However, he gets caught in a traffic jam and gets late again, जो कि नेचुरल है, ठीक है। He arrives 20 minutes late at 10:20. This unfactored का मतलब है ये सोचा नहीं था, जो पहले सोचा नहीं था। This unfactored delay makes him anxious and nervous. देखो आज ही ये 2 शब्द हम लोग बोल रहे थे, एंजाइटी एंड नर्वस। एंशियस का मतलब क्या होता है? सुनो, एंशियस का मतलब होता है जब हम लोग सोचते हैं क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होगा, कोरोना कब रुकेगा, कोरोना सबको हो रहा है, मेरे को तो नहीं होगा। ये एंजाइटी अभी सब लोग में काम कर रहा है,
क्यों? क्योंकि एक डर छाया हुआ है। तो वही चीज, एंजाइटी। तो वो इंटरव्यू में लेट पहुंचा तो उसको एंजाइटी हो रहा था, क्या होगा, क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, मेरे को तो निकाल मतलब रखेगा नहीं, ये सब एंजाइटी काम करने लगेगा। सोचो ह्यूमन साइकोलॉजी, नर्वस हो गया बेचारा। आफ्टर अपोलोजाइजिंग, अपोलोजाइज किया, रिसेप्शनिस्ट को ही अपोलोजाइज कर दिया, करना भी चाहिए, दैट्स अ गुड थिंग, एंड इन्फॉर्मिंग हर द रीजन फॉर बीइंग लेट, रोहित वेट्स फॉर हिज टर्न फॉर द इंटरव्यू। ओके, फिर एन आवर लेटर, 1 घंटा बाद, उसको बैठाने के बाद, ये जानबूझ के करता है वो लोग, टेस्ट करता है कि तुम लेट आए तो तुम भी लेट रह सकते हो कि नहीं। आफ्टर एन आवर ही गेट्स कॉल्ड in for the interview. It has been one of the longest hours in Rohit's life. देखो 1 घंटा longest कैसे होता है? Relativity. If you know what I am trying to say, relativity. कभी कभार 1 घंटा लगता है 1 मिनट, निकल गया, समझ में ही नहीं आया, अरे 1 घंटा कहाँ गया, खत्म हो गया। हाँ, और कभी कभी लगता है 1 घंटा जो 10 घंटा लग रहा है। बोरिंग क्लास, बोरिंग क्लास, कोई भी क्लास अगर बोरिंग लगे तो लगता है कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, कम वक्त, अभी भी कोई सोच रहा होगा। और इंटरेस्टिंग क्लासेस जो होता है उसमें लगता है अरे ये खत्म हो गया। तो दिस इज द फंडा ऑफ रिलेटिविटी। तो ऑन एंटरिंग द इंटरव्यू रूम he finds himself facing a group of 5 interviews. सर बड़ा कंपनी में 5 इंटरव्यूज रहते हैं, हाँ, 5-5 पैनल, इंटरव्यू पैनल रहता है, 5-5 जन। सर आप कभी इंटरव्यू दिए, इंटरव्यू लिया भी, दोनों ही किया, तो आई नो द साइकोलॉजी ऑफ इंटरव्यू वेरी वेल। तो सर 5 जन क्या एक साथ बोलेंगे? एक साथ बोलने से तो वो घबरा जाएगा, बट 5 जन रहेगा। ओके सर। तो रोहित पहले ही घुस के क्या बोला? गुड मॉर्निंग सर, यानी कि ग्रीट किया। मिस्टर ए बोला प्लीज बी सीटेड, व्हाई डिड यू गेट लेट मिस्टर रोहित? ऑफ कोर्स नाराज तो थे वो लोग, ठीक है। रोहित क्लेंचिंग हिज हैंड्स, क्लेंचिंग का मतलब ऐसे क्लेंच करना, क्लेंचिंग हिज हैंड्स said I am sorry I got caught in an unprecedented jam, traffic jam। unprecedented मतलब पहले सोचा ना था ऐसा, पहले जो सोचा ना था ऐसा। मिस्टर बी बोला ऑफ कोर्स, मैं जो बोला बात वही बात मिस्टर बी उसको बोला, ए बी सी डी। बी बोला कि भाई ऑफ कोर्स, स्नर्ल्स, स्नर्ल्स का मतलब है ट्रैफिक जैमी, स्नर्ल्स आर एन एवरीडे ऑकरेंस इन एनसीआर। एनसीआर जिन लोग को नहीं आता है, एनसीआर होता है नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली गुड़गांव बेल्ट को एनसीआर बोला जाता है। तो बोला एनसीआर में हम लोग का कैपिटल में ये तो हर दिन का बात है ट्रैफिक जैम, बड़ा शहर में, कोई भी बड़ा शहर में ये हर दिन का बात होता है। एनीवे टेल अस अबाउट योरसेल्फ, बोला आपके बारे में बात करो अभी। रोहित शिफ्टिंग हिज सीट, देखो क्लेंचिंग हिज फीस्ट एंड शिफ्टिंग हिज सीट आर बोथ कम्युनिकेटिंग, आर बोथ कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशन, ये जो अभी मैं झुक के बात कर रहा हूं ये भी क्या है? कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज है। हाँ, मैं दिखा रहा हूं मैं कितना इंटरेस्टेड हूं आप लोग को समझाने में। एवरीथिंग कम्युनिकेट्स, आर सिंसियरिटी, आर डेडिकेशन, आर इंटरेस्ट, हर चीज आप समझ पाओगे दुनिया में अगर आप अच्छा कम्युनिकेट कर पाते हो। और अच्छा कम्युनिकेट करना मतलब अच्छा बोलना नहीं, समझना भी, दूसरों को समझ पाओगे। तो द आइडिया इज, ये जो सर रोहित क्लेंचिंग हिज हैंड किया, फिर शिफ्टिंग हिज सीट किया, इससे पता चल रहा है कि वो नर्वस है या नहीं। दिस इज कम्युनिकेटिंग हिज एंशियसनेस एंड नर्वसनेस बोथ। एंड ऑफ कोर्स इंटरव्यूअर्स लाइक टू सी दैट whether you can handle pressure situation। एक जॉब में आपको रख के, हाई प्रेशर जॉब में तभी रखा जाएगा जब आप हाई प्रेशर हैंडल कर पाओगे, नहीं तो जॉब में भी तो ऐसा प्रेशर हर दिन आएगा, आप कैसे हैंडल करोगे और कैसे काम करोगे। सो बोला व्हाट वुड यू लाइक टू नो अबाउट मी? रोहित फिर फट से जवाब दिया, बोला कि सर क्या जानना चाहते हो? मिस्टर बी बोला एनीथिंग यू थिंक इज इंपॉर्टेंट, मतलब बॉल को उसका कोर्ट में ही दे दिया, देखना चाहता है वो क्या बोलेगा अगर उसके बारे में उसको बोलने कहा गया। तो रोहित शुरू किया,
रोहित बोला देखिए मैं दिल्ली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ है, मैं दिल्ली बॉय बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर। बहुत बढ़िया। आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम एबीएस पब्लिक स्कूल। फिर बोला कि एबीएस पब्लिक स्कूल एंड ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम एमिटी बिजनेस स्कूल। ऑफ कोर्स ये ऊपर में भी लिखा था उसके बारे में। आई एम एन एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मतलब जो घुल मिल जाते हैं लोगों के साथ, अपने आप नहीं रहते हैं, बातचीत करता है, ठीक है, सोशलाइज करता है, वैसा व्यक्ति को बोला ओपन कैरेक्टर, वेरी आउटगोइंग पर्सनालिटी, वैसा व्यक्ति लोग को बोला जाता है एक्सट्रोवर्ट। तो वो बोला आई एम एक्सट्रोवर्ट हु गेट्स along well with people and I am also focused and hardworking person who is result oriented। मैं एक बात कहूं, कोई अगर तुम्हारे बारे में जानने का कोशिश कर रहा है, अगर तुम्हारा सीवी ऑलरेडी उनके पास है, तुम्हारा सीवी में लिखा रहेगा तुम कहाँ का हो, कौन सा स्कूल में गए और कौन सा कॉलेज से ग्रेजुएट किए, वो ही देख के तुमको इंटरव्यू में बुलाया गया है। अगर फिर भी तुमको पूछा गया कि तुम्हारे बारे में बताओ, तो तुम अगर सेम चीज जो सीवी में लिखा है दोहरा रहे हो, इट्स गुड और बैड, वेरी बैड, इट्स वंस अगेन वेस्टिंग अदर्स टाइम, बिकॉज दे नो। एंड डोंट टेल देम यू नो टाइपकास्ट एंड जो टिपिकल मगअप करने वाला आंसर, आई एम एन एक्सट्रोवर्ट, मैं टीम वर्क अच्छा कर सकता हूं। नहीं, ऐसा कुछ अनोखा बोलो अपने बारे में जिससे उसको समझ में आए वो चीज जो तुम्हारा सीवी में लिखा नहीं है बट तुम बताना चाहते हो। मिस्टर सी फिर पूछ ही लिया कि व्हाट अकॉम्प्लिशमेंट्स आर यू प्राउड ऑफ। रोहित हेजिटेशन एंड पॉज के साथ, मैं नैरेटिव को ऐसे पढ़ रहा हूं जाके पूरा समझ पाऊं। रोहित हेजिटेशन एंड पॉज के साथ बोला आई have always been a good debater and have won many trophies at school and college level. I was appreciated and given a commendation certificate for my project work with company X। मेरे को बताओ, रोहित को ये प्रोजेक्ट के बारे में सिर्फ एक लाइन बोलना था या जिसके बारे में वो कमेंडेशन जीता था, एक कमेंडेशन सर्टिफिकेट उसको दिया गया था, उसी के बारे में ज्यादा करके बोलना था? उसी के बारे में ज्यादा करके बोलना था। उसने मिस फायर किया बाय नॉट टेलिंग मोर अबाउट दिस प्रोजेक्ट वर्क विद कंपनी एक्स, बिकॉज ये सब बोल के ही तो वो कॉन्फिडेंस हासिल कर पाएगा। फिर मिस्टर डी बोला कि तुम्हारा लाइफ में एक डिफिकल्ट सिचुएशन या एक्सपीरियंस तुम कैसे डील किए, बताओ, जाके हम लोग समझ पाए। आप लोग को पता है कि नहीं, मेरे को पता नहीं, ऑस्ट्रेलियन आर्मी recruits people who have failed in life। यानी कि आपका मार्कशीट में पास 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 एक भी फेल नहीं है, आपको इंटरव्यू में बुलाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप कभी फेलियर का सामना किए ही नहीं। फेल करने के बाद कैसे घूम के लाइफ में आगे बढ़ना है, ये सबक जो नहीं सीखा और ये कभी कोई अगर एक्सपीरियंस नहीं किया, तो he or she doesn't know how to cope up with failure, which is a very important thing in life। तुम सोचो, आज जो परिस्थिति है बाहर में, दुनिया में, पूरा दुनिया में बहुत अनसर्टेन है, हर चीज अनसर्टेन है। क्यों? क्योंकि माहौल ही वैसा है। और ये अनसर्टेनिटी में स्ट्रॉन्ग फिर भी जो है, वो अनसर्टेनिटीज पहले भी फेस किया है, उसका मतलब वही है उसका एक्सपीरियंस। इसीलिए हमेशा इंटरव्यू में भी हर जगह जो अच्छा एकदम सॉलिड लेवल का जगह है, वहां पे पूछा जाता है टेल मी अबाउट अ डिफिकल्ट एक्सपीरियंस इन योर लाइफ एंड हाउ डिड यू डील। अब इसका भी आंसर सर कैसे लिखे, वर्ड्स सर कैसे लिखे, टेक्निकल वर्ड्स दे, ये सब मत पूछना। मन से बोलो जो भी बोलो और देखोगे तुम एकदम अच्छा आंसर दोगे लाइफ में। ओके, तो रोहित क्या बोला देखते हैं। रोहित ने बोला वेल सर, आई हैवंट फेस्ड मेनी डिफिकल्ट सिचुएशन सो फार। वाह, पहले ही मार खा गया। फिर बोलता है हाउएवर मूविंग इनटू हॉस्टल आफ्टर स्कूल डिड रिक्वायर मेनी एडजस्टमेंट्स। तो बोला उसका लाइफ में जो
ऑनेस्टी के साथ आंसर देना इज गुड. सो रोहित इज बीइंग ऑनेस्ट, व्हिच इज अ गुड थिंग, गुड साइन. सो वो बोला कि हाउएवर मूविंग इनटू अ हॉस्टल डिड रिक्वायर मेनी एडजस्टमेंट्स. हॉस्टल में लिव जो लोग रहे हो, आप लोग में भी, आप लोग को पता है आप लोग कितना कुछ सीखे हो हॉस्टल लाइफ में, जो एक बच्चा या जो एक स्टूडेंट या जो एक यंग पर्सन नहीं सीखता है मम्मी पापा के साथ रह के. ऑफ कोर्स इट हैज गॉट इट्स ओन ट्रेनिंग, हार्डशिप. I had to make new friends, cope up with bossy seniors. Bossy seniors तो क्या क्या करता है सोचो. Do all my basic work myself and stop being fussy about food. I learned many life skills and became independent and responsible. ये अच्छा चीज है. अब मिस्टर एक अनोखा सवाल पूछ दिया to judge his innovative skills and creativity. बोला can you think of 5 ways that you can use this styrofoam cup. Styrofoam cup तो नहीं है मेरे पास, ये है अभी. तो अगर तुमको कोई पूछे इससे क्या क्या 5 चीज कर पाओगे, मैं बोलूंगा इस पे डिजाइन कर पाऊंगा, इसका मूंछ को और बड़ा कर पाऊंगा गारफील्ड का, ठीक है, इसको चश्मा पहना पाऊंगा, डिजाइन. नंबर 2, इसको पेपर वेट की तरह रख सकता हूँ, पेपर को वो करके. 5 अलग वे में कैसे यूज करेगा पूछे जा रहे. नंबर 3, ये खाली रहेगा तो इसमें पेबल्स भर सकता हूँ. नंबर 4, इसमें ऑफिस का जेम्स क्लिप पेन स्टैंड जैसा यूज कर सकता हूँ. नंबर 5, अगर गुस्सा आया तो किसी को, ठीक है, नहीं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है. और ये सारा चीज अभी जो इसका बेसिक फंक्शन है वो कर रहा हूँ. ये सारा चीज कब से हो सकता है, तो उसको वही पूछा कि क्या क्या अपना दिमाग दौड़ा के बताओ. तो रोहित पिजेट्स विथ हिज फोल्डर, पिजेट किया विथ हिज फोल्डर, मतलब जो फोल्डर लेके आया था पिजेट कर रहा है, मतलब वंस अगेन ही शोइंग नर्वसनेस. और बोला सर इट कैन बी यूज्ड टू होल्ड ऑफिस क्लिप्स, कैरी स्टिकी सॉलिड फूड आइटम्स, परहैप्स ट्रैप अ कॉकरोच ट्रैप करके उसी से कॉफी पिएगा, कितना गंदा है, ठीक है. एंड आई कैन थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स. फिर मिस्टर ई उसको लाइट करने के लिए पूछा कि कैन यू टेल अस अ जोक. दिस वाज नॉट ओनली टू मेक हिम लाइट and make the situation lighter, but this is also another psychological trick to see एक आदमी टफ से टफ टाइम में भी कितना रिलैक्स्ड है. अगर तुम रिलैक्स रहोगे तो यू कैन डू ह्यूमर. ह्यूमर शोज आवर एबिलिटी टू कोप अप विथ लाइफ एंड स्ट्रेस. सो रोहित को पूछा, रोहित तो नर्वस ही था, वो प्रूव कर दिया. रोहित कंप्लीटली कंफ्यूज, कैन नॉट थिंक ऑफ एनी जोक. He can relate to an interview panel. Sir, I cannot recall a joke I can share with you. बोल दिया. Honesty फिर भी अच्छा है. तो मिस्टर सी बोला, रोहित, we will get back to you. ये लाइन सबसे बड़ा डिसेप्टिव लाइन है. तुम लोग जब इंटरव्यू दोगे तुम लोग को समझ में आएगा. इसका मतलब होता है we will never get back to you. ये रियल लाइफ बता रहा हूं. रोहित बोला थैंक यू सर. रोहित exits the room and wonders what would be the outcome of the interview. सर ये जोक वाला चीज कोई प्रैक्टिकल. one of my friends he went to ITC. ITC का मतलब, सॉरी, ITC क्या कंपनी है तुम लोग को पता है, फुल फॉर्म इंडियन टोबैको. तो इंडिया का एंड वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ टोबैको ITC है. कैलकाटा में हेड ऑफिस है, इंडियन कंपनी है, होटल्स है, FMCG है, अभी सब बिजनेस डाइवर्सिफाइड है, बट टोबैको में अभी भी नंबर लीडर है. तो ये ITC जो है, ITC CA लोग को हायर करता है ऑफ कोर्स, एंड ITC का पैकेज ऑफ CAs इज वेरी डिसेंट. कैलकाटा में वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज टू वर्क फॉर, एंड इंडिया में भी. सो ITC में मेरा एक दोस्त था, मैं इंटर्नशिप किया था 2 महीना. तो जब ये एक दोस्त था, मतलब मैं जब CA कर रहा था एज अ स्टूडेंट, he went to give an interview in ITC and internship का, and then he was asked all these questions, and after leaving उसको जोक वोक नहीं पूछा कोई, वो खुद से बोला सर मैं एक बात बोल सकता हूँ. सब लोग पूछा हाँ. बोला प्लीज कंसीडर माई कैंडिडेचर, मैं आप लोग को बहुत बिजनेस दिया. They cracked up. I hope you guys understood
what he tried to say. बहुत बिजनेस दिया आप लोग को मैं, ठीक है? तो ये जैसे ही बोला ये ह्यूमर हो गया. Not that he is promoting the product which they are selling or something like that, but it's a humor. Okay, so that is how you can think and react in situations which are really tough. Okay, so now pehla question, do you think Rohit will be selected by the interviewers? मैं तो why not बोल ही दिया. अब देखो वो लोग भी वही बोला, Rohit is unlikely to be selected for the internship. He has revealed his anxiety and nervousness. मैं बोला ना, उसका बॉडी लैंग्वेज से बार बार वो हुआ, क्लेंचिंग ऑफ फिस्ट से लेके शिफ्टिंग ऑफ सीट से लेके हर चीज में he has revealed his anxiousness and nervousness. He has not understood the interviewer's focus. मैं बोला ना, इंटरव्यूअर का फोकस जोक सुनना नहीं है. इंटरव्यूअर का फोकस क्या है? इंटरव्यूअर का फोकस ये देखना है कि तुम कैसे हैंडल कर रहे हो प्रेशर सिचुएशन. इंटरव्यूअर का फोकस है कि तुम तुम्हारे बारे में क्या हाईलाइट करना चाहते हो, देखना तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है? तो विनिंग आर्ग्यूमेंट्स इन डिबेट और हिज इंफॉर्मेशन, हिज प्रोजेक्ट वर्क इज इनकम्प्लीट, ठीक है ना? Rohit also fails to exhibit the ability to think on his feet. Why? Because उसको जोक नहीं आता है और इनोवेशन स्टाइरोफोम कप का 2-3 ही बोल पाया. तो ये सारे वजह से मेरे को भी लगा कि उसको नौकरी नहीं मिलेगी. सर, which non-verbal cues revealed Rohit's state of mind to the interviewers? What conclusion did they come to? बोलो, non-verbal cues में सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा क्या था? Sorry, just a moment. Yeah. So सबसे बड़ा non-verbal cue क्या था? Clenching of hands, shifting of seat, fidgeting with the folder, hesitating, pausing, reveals his nervousness and anxiety. ठीक है? फिर question 3 क्या था? सर question 3 था, Mr. B asks Rohit to tell something about yourself. What did he want to know about Rohit? Of course, रोहित का स्ट्रेंथ के बारे में जानना चाह रहा था. तो स्ट्रेंथ्स, हॉबीज, कैरेक्टर ट्रेट्स. I always mention in my live classes, I always ask every one of my students to introduce themselves. यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है. मैं जानना चाहता हूँ मैं किनको पढ़ा रहा हूँ, किन से बात कर रहा हूँ. So it's possible in live class. I always try and do that, connect at personal level. Okay, so that communication becomes better between us. So the thing is as simple as that. Rohit should have spoken about his hobby. If I say, okay, I dance, I'm talking about myself. I dance, I do yoga, I play football, I play a lot of sports, badminton. Okay, and if I tell you, then you get a picture of how this person is. I'm into music, I play a lot of instruments. So all these things talk about our hobbies. Hobbies से हम लोग को पता चलता है कि आदमी कैसा है, क्या करना अच्छा लगता है, ठीक है? So he wishes to know about his strengths, hobbies and character traits. Okay, then question 4 क्या बोलता है सर? Rohit says I am a Delhi boy, born and brought up here, and I did my schooling from ABS public school and graduation and postgrad from Amity best school. And which principle of good communication he has failed to apply. मैं तुम लोग को पहले ही बोल दिया था ये लाइन इंटरप्रेट करते वक्त कि रोहित irrelevant डिटेल देते गया जो उसका सीवी में छापा हुआ है. तो देखो, he has added irrelevant details. दिल्ली उसका सीवी में लिखा हुआ है. The interviewer knows about his qualifications from his resume. Resume का मतलब वही जो जमा दिया था इंटरव्यू में आने के लिए. Rohit should have been concise and focused. अब लास्ट 2 सवाल है. लास्ट 2 सवाल क्या है सर? While talking about his accomplishments, where did Rohit go wrong? Which characteristic of effective communication is missing in his answer? Of course, Rohit failed to give complete information about his project work.
उसको देना चाहिए था ना। फिर डिबेटिंग, तो आंसर में वही लिखा देखो, रोहित फेल टू गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट हिज स्ट्रेंथ्स इन डिबेटिंग एंड डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क ही वर्क। उसको बताना चाहिए था किस लिए उसको कमेंडेशन सर्टिफिकेट मिला था। लास्ट क्वेश्चन वाज क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में लिखा है व्हाट बैरियर्स डू यू थिंक वर प्रेजेंट इन द इंटरव्यू। ऑफ कोर्स आप लोग बताइए क्या बैरियर था। इमोशनल बैरियर था ना, इमोशनल बैरियर वाज देयर। सो वही है प्रैक्टिस एक्सरसाइज। प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी होमवर्क में था। प्रैक्टिस एक्सरसाइज का सवाल जवाब बहुत ही आसान है। मैं एक बार डिस्कस करना चाहता हूं, मैं कुछ छोड़ता नहीं हूं होमवर्क भी, ठीक है। State the types of communication channels used by humans. Explain each in a couple of sentences. Channels of communication आपको बताना है। Channels of communication यानी कि वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल, हम लोग पढ़े थे ना। ये देखो वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल, और वही चीज जो पढ़े थे वही लिखा हुआ है। ऐसा बड़ा आंसर आएगा नहीं, आएगा ही नहीं। ऐसा बड़ा आंसर कैसे आएगा 3 मार्क्स के लिए, तो बोल दिया, ठीक है। तो यही लिखना है सर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन था, जस्ट अ मोमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट आर द मेन स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। वही एनकोड से लेके डिकोड तक, सेंडर से लेके रिसीवर तक प्रोसेस स्टेप्स। नेटवर्क्स यूज्ड इन कम्युनिकेशन, व्हाट आर द नेटवर्क्स यूज्ड इन कम्युनिकेशन। ना देख के एक बार खुद को खुद बोलो। नंबर 1 वाज व्हाट? नंबर 1 वाज, याद करो, सबऑर्डिनेट टू वे कम्युनिकेशन, सबऑर्डिनेट सुपीरियर। नंबर 2 वाज, मैं खाली डायरेक्शन का सेंस दे रहा हूं। नंबर 2 वाज सी से स्टार्ट होता है, हिंट भी दे दिया, गोल गोल घूमने वाला। नंबर 3 मैं बोला था कि नंबर 3 इज जो हम लोग गले में पहनते हैं, चेन, बोल दिया, ऑफ कमांड। नंबर 4 वाज मैं बोला था कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में इस्तेमाल होता है, साइकिल में होता है, व्हील एंड स्पोक। एंड नंबर 5 इज सबके साथ सबका, स्टार। So all these are networks of communication। और बोला which is the most effective, which is the most effective for the team and why। टीम वर्क के लिए सबसे इफेक्टिव है स्टार। ओके सर, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ व्हील नेटवर्क। व्हील नेटवर्क में जो सेंटर में रहेगा वो सबसे ज्यादा थक जाएगा, वही डिसएडवांटेज है। टाइमली काम नहीं होगा क्योंकि उसके पास 10 काम है, कोई भी काम समय से नहीं हो पाएगा, ग्रोथ कम होगा। अकॉर्डिंग टू विच आर द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। 5 C's बता दो, कंसाइज, क्लियर, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, कोहेरेंट, ठीक है। व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन आज किए। इन ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर विच अकॉर्डिंग टू यू impedes communication the most। impedes मतलब कम्युनिकेशन को टोकता सबसे ज्यादा कौन है? in an organization which barrier, sorry, in an organization which barrier, not organizational barrier, ठीक है। how do cultural barriers affect communication with your own examples। तो these are the 2 questions। हर एक चीज का आंसर लिखा हुआ है, और ये आंसर्स लिखने के बाद, ये आंसर्स लिखने के बाद आप लोग ये देखो 6 and 7 द बैरियर्स इन कम्युनिकेशन फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सिलेक्ट द बैरियर यू थिंक, तुमको जो ठीक लगे तुम लिखना। कल्चरल डिफरेंसेस के बारे में बोल दिया, ये भी आंसर है 6 and 7, यहाँ पे देख लेना एक बार मिला के। आई हैव डन द एंटायर चैप्टर फ्रॉम वर्ड गो till the very end, and I will quickly say that we have ended today's class, and before I go I will like to remind you our next class is on Wednesday करके लॉ हो रहा है, एंड फ्राइडे करके BCR हो रहा है। अगला हफ्ते तक यही मेरा रूटीन है, अगला हफ्ते तक। उसके बाद मैं शायद बढ़ाने वाला हूँ क्योंकि लॉकडाउन एक्सटेंशन का फीलिंग आ ही गया है, तो वीक में बढ़ा देंगे लॉ। गोइंग फॉरवर्ड मेरा प्लान जो है, मतलब मेन
चीज का मैं बता रहा हूँ 2:1 होगा, लॉ 2 बार होगा, बीसीआर 1 बार होगा। अल्टरनेटिवली बीसीआर खत्म हो जाएगा तो लॉ ही होगा, ठीक है। बीसीआर काफी छोटा है लॉ से। एंड घर में एक बार पढ़ के आना। होमवर्क देखने का उपाय यही है, किसी को अगर सुओ मोटो का मतलब है on his own or on her own wants to show me whether they have written the answers correctly or not, if they want me to review sometimes, of course review करने का एक उपाय है स्टैंडर्ड आंसर के खिलाफ खुद रिव्यू करो तो और अच्छे से सीख जाओगे, ये मोस्ट इफेक्टिव वे है, इसलिए मैं स्टैंडर्ड आंसर भी डिस्कस कर दी। बट उसके ऊपर भी जाके अगर किसी को रिव्यू करवाना है मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। होमवर्क का सरप्राइज चेक मैं क्या करूंगा, मैं समझ गया, मैं कभी कभार एट रैंडम किसी को बोलूंगा कि मेरे को व्हाट्सएप कीजिए होमवर्क, तब अगर नहीं कर पाए तो इट विल बी एम्बैरेसिंग। ओके, without any further ado I will end but not ending, wait, I have some queries to address to sir। अभी बताइए कि सब लोग होमवर्क डिस्कस करते वक्त बहुत कुछ लिखा, मैं शुरू से एक बार पढ़ना चाहता हूं। ओके ओके, सो हाँ, पहला चीज सर, इन केस, ओके, फर्स्ट थिंग इज yes I can we use ornamental words, यहां तक मैं पढ़ा था। what we हर्षित तुम्हारा सवाल का जवाब बाद में मिलेगा। शुभम, we can give our own suggestions on answers, yes you can, but not in the exam may be precise and be to the point। Harshita said in case study the barrier can be attitude barriers as Rohit was late, no, this yeah it's a part of attitude barrier also, but barrier नहीं है क्योंकि समझ में तो आ गया, communicate तो हो गया, it communicated, his attitude here communicated, it's not a barrier। okay, yeah it's a barrier in the sense कि interview couldn't take place on time, from that perspective। we can give our own suggestion on answers and sir audit क्या law से related है? थोड़ा बहुत, शायन का सवाल है audit क्या law से related है? हाँ थोड़ा बहुत related है। सर डू बुक बिग फोर, जतिन का सवाल है, सर डू द बिग फोर ऑफर आर्टिकलशिप आल्सो? यस, सॉरी टू डिविएट, नो नीड टू से सॉरी, आई एम वेरी ओपन माइंडेड जतिन। शायन एक बोलेगा बाकी तो उसका पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड देखेगा, हाँ नहीं ऐसा नहीं है, सब लोग बोलेगा। You have spoken about interviewers, everyone spoke, they wanted detailed information, you won't get interview again with them, yes quite possible। एक्सट्रोवर्ट चेक करने के लिए सब लोग कमेंट किए केस स्टडी में, गुड, यस नो, सर बीइंग लेट वाज आल्सो अ ड्रॉबैक, यस, क्लेंचिंग हैंड्स, वेरी गुड, क्लेंचिंग हिज फीस। सर हम लोग रिज्यूम लिखना सीखेंगे, हाँ हम लोग रिज्यूम लिखना सीखेंगे। सर्किट वर्टिकल, वेरी गुड, सब लोग बोल रहे थे आंसर। चेन, वेरी गुड, चेन वेरी गुड, चेल विलियन स्पोक, ठीक है। Sir, in answer 1, why the book has given formal and informal communication? Because book में formal and informal communication लिखा हुआ है, because formal and informal communication be part of your types of communication ही हुआ। Sir, star बहुत लोग लिखे, star में single R है। Concrete, okay, characteristics of communication, Vanshita wrote concrete, very good. Sir, in answer 1, boy as book given formal and informal communication, Jatin again asks for question 6 of case study, attitude barrier can also be told as Rohit was late। So Harshita once again said I explained to you attitude barrier। Sir, I am out of station and I will try to do homework, ठीक है सर, मेरा व्हाट्सएप कर दूंगा, आपको होमवर्क कर देना। सर आई एम आउट ऑफ स्टेशन, नो आई, ठीक है, सबका सब कुछ मैसेज मेरे ख्याल से रिस्पॉन्ड किया, देखो किसी का कुछ छोड़ा नहीं। ओके, गुड कम्युनिकेशन। ऑलराइट, वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू गाइस। एक लास्ट सवाल आ गया, what can be regarded as positive statement from interviewers at the conclusion of the interview? They will ask you how soon can you join the organization? A person, Swastik, has asked, sir, what can be regarded as a positive statement from the interviewers at the conclusion? उसको
उसको ये बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि वो देखा सर बोला कि ये पॉजिटिव नहीं था, नेगेटिव था, वी विल गेट बैक टू यू। बट पॉजिटिव क्या होता है, जब इंटरव्यूअर एकदम इम्प्रेस्ड हो जाता है, इंटरव्यूअर गिव अवे कर देता है बहुत सारा सिग्नल्स, वो पूछता है हाउ सून कैन यू ज्वाइन, और तब क्या करना है वो मैं अभी नहीं बोलूंगा, ठीक है? सो द आइडिया इज दैट, एंड Tushar says, as I am in Kolkata, but right now I am stuck in Odisha. I will try to do in homework. What sort of communication is this, Tushar? I am in Kolkata, but I am stuck in Odisha. लिखो I am from Kolkata. How can it be? आप हैरी पॉटर हो क्या? एक बार यहाँ पे एक बार वहाँ पे। सर प्रीवियस क्लास कैसे कंप्लीट करे? प्रीवियस क्लास कैसे कंप्लीट करो मतलब? यूट्यूब में जाओ नालायक, मेरा पेज को सब्सक्राइब मारो, लाइक मारो, लाइक मत मारो, लाइक तुम्हारे ऊपर है, सब्सक्राइब करके तुम देखो वीडियोस दिया हुआ है। सर मेरे को आईटीसी वाला ने एकदम लास्ट में पूछा था, तुम्हारे घर में सीरी कितना है? तुम्हारे घर में सीरी कितना है? हाँ तो बता देना, उसको थोड़ी ना पता है तुम्हारा घर में सीरी कितना है, तुरंत बताना, ठीक है? ओके, so I'm concluding today's class. Thank you. We are meeting in the next class. Thanks.